Good morning, student of class 5. How are you? I hope student you all are well. Doing preparation for your unit test 1 exam also, and when you are getting time watching the video also. So student, today date is 8, chapter is 13, now northern plains we are studying, and in my previous, let's do recapitulation what we have done in the previous video. In previous video I explained you about northern plains, which are the states in which we have these northern plains. That thing we have discussed in the detail. Okay, and after that, what is the extent of plain from what is the extent of plain from Punjab to Assam? That is 2400 kilometer, and how much it is wide? That is 150 to 300 kilometer. These things we have discussed in very detail in my previous video. Now student, in today video we will study what? Okay, let do one thing. In previous video I explained you what is the western part of the plains formed by the Indus rivers and covered states of Punjab and Haryana. Okay, and then student, when we are talking about the central part of the plains, that is formed by the river Ganga, and it covered which are the states it covered? That is UP, Uttar Pradesh, Bihar and West Bengal. Now today let's start with the eastern state. So eastern part, note down, these are very important. If you start making notes from the board, then it becomes very easy for you to understand. Is it clear? So in previous video I told you about western part and central part. Today let's start with the eastern part. Eastern part of the plains, eastern parts of the plains are formed, eastern part of the plains are formed by the Brahmaputra. Brahmaputra river and covers the state of Assam. Okay, in previous video we have discussed about the western and central part of the plains. Western part is by the Indus river, central part we discuss river Ganga's plain, and next eastern part of the plains are formed by the Brahmaputra river and covers the state of Assam.
ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, सबको समझ में आ गया कहां तक मैंने कवर कर दिया। अब देखो नाउ सी स्टूडेंट, मैंने बस एक शॉर्ट में मैप बनाया है, आई हैव नॉट मेड द फुल मैप। all of you, if you are having atlas, then take out your atlas and then it become very easy for you to understand, because in today video we will discuss open page number 83. all of you open page number 83. in today video student, I will discuss the northern plains can be divided into 3 rivers basins. Okay, and what is basin? An area watered by a river and its tributaries is called basin. ठीक है, वो पार्ट जिसपे वाटर है किसका है? रिवर्स का और उनकी ट्रिब्यूटरीज का। So I think what is the river that you all are able to understand. What are tributaries? ट्रिब्यूटरीज को आप ये भी कह सकते हो सहायक नदियां या स्मॉल रिवर्स विच मिक्स और विच फॉल इनटू द और विच मिक्स इनटू द बिग रिवर्स। ठीक है, आप ये समझने के लिए कह सकते हो ट्रिब्यूटरीज क्या सहायक नदियां होती हैं, स्मॉल रिवर्स विच फॉल इन अ बिग रिवर्स और whose water get enter into the किससे मिक्स हो जाता है? बिग रिवर्स के वाटर से, that are tributaries. basin क्या है? that is also clear to all of you. the area watered by a river, वो एरिया जिसमें वाटर किसका है? रिवर का और उसकी ट्रिब्यूटरीज का है, रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज का वाटर है। so now student, northern plains can be divided into 3 river basins, that is Satluj basin which lies in the state of Punjab and Haryana, is it clear? then Ganga basins lies in the Uttar Pradesh, Bihar and West Bengal. then Brahmaputra basin, a narrow strip in Assam, a narrow strip in Assam, is it clear? So student, today we will discuss about सतलुज बेसिन्स। ठीक है, देखो कंफ्यूज नहीं हो जाना, जैसे मैंने आपको बोला था इंडो गैंगेटिक प्लेन 3 रिवर्स से, अभी मैंने एक एपिसोड पहले आप लोग को बोला होगा कि 3 रिवर्स से बना है, दैट रिवर्स आर इंदस, इज इट क्लियर? और उसके बाद फिर मैंने गंगा बोला एंड देन आई टोल्ड यू अबाउट द ब्रह्मपुत्र। ठीक है, सो अब यहां पे आप सोच रहे होगे कि सर तो सतलुज बेसिन्स की बात कर रहे हैं, इट लाइज इन द स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। ठीक है, क्योंकि कल मैंने अभी एक दिन पहले के एपिसोड में मैंने आप लोग को बताया होगा कि नॉर्दर्न प्लेन्स इट इज क्रिएटेड बाय 3 रिवर्स। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स इट इज क्रिएटेड बाय 3 रिवर्स, मैंने आपको पढ़ाया था, इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, मैंने ये आपको पढ़ाया था, लेकिन जब टुडे आई एम टीचिंग यू तो मैंने बोला कि इंडिया में द नॉर्दर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 रिवर बेसिन्स, दैट इज सतलुज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन। ठीक है, तो आपको लगेगा सर ने तो सतलुज का कोई इंट्रोडक्शन ही नहीं दिया था और एकाएक सर ने आज इंदस को हटा के सतलुज बोल दिया कि सतलुज बेसिन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, गंगा बेसिन्स के बारे में डिस्कस करेंगे और ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में डिस्कस करेंगे, सर ने ऐसा बोल दिया। ठीक है, सो स्टूडेंट डोंट बी इन कंफ्यूजन। ठीक है, आई एक्सप्लेन यू व्हाई इन द प्लेस ऑफ इंदस रिवर की जगह पे मैंने सतलुज बेसिन वर्ड यूज किया, सतलुज रिवर का नाम यूज किया। सो व्हाट इज द रीजन दैट आई एक्सप्लेन यू, देन आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग यू व्हाट इज सतलुज बेसिन।
आगे आपको समझ में, तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा सतलुज बेसिन क्यों लिखा है। इज इट क्लियर? और देखो ठीक है, ये हो गया, ये तीनों हमने पढ़ लिया। वेस्टर्न पार्ट ऑफ द प्लेन्स, सेंट्रल पार्ट्स ऑफ द प्लेन, या आप ये भी कह सकते हो मिडल पार्ट्स ऑफ द प्लेन्स। इज इट क्लियर? एंड eastern part of the plains that are formed by the river Brahmaputra river, and it covers the states of Assam, and it covers the state of Assam. नोट डाउन इसे कर लो। so I rub it, और फिर ये थिंग आपको मैं एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, here we will discuss the Satluj, we will discuss the Satluj basin, and then we will discuss the Ganga basin, and then we discuss the Brahmaputra. ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, चलो ठीक। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ मैंने इंडस रिवर का नाम लिया था, बट आई से दैट इंडिया स्टेट्स आर द नॉर्दर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 रिवर बेसिन्स, दैट इज द सतलुज बेसिन, गंगा बेसिन एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन। ओके, सो वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑल द दिस थिंग। सो टुडे वी विल डिस्कस द सतलुज बेसिन। आज हम क्या डिस्कस करेंगे बेटा? आज हम लोग डिस्कस करेंगे सतलुज बेसिन। ठीक है, अब देखो व्हाट इज दिस। देखो इंडस की जगह में सतलुज इसलिए यूज किया है कि सतलुज इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। ठीक है, इंडस रिवर जो है इट इज ऑरिजिन इसकी कहां से है? ठीक है, इंडस रिवर कहां से आ रही है बेटा? ये आपका तिब्बत, जो कि चाइना का पार्ट है, वहां से इसकी ऑरिजिन है। ठीक है, और वहां से ये जम्मू कश्मीर में इंटर कर रही है। ये कहां इंटर कर रही है? इट इंटर्स इन जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर में इंटर करके ये देखो मैंने छोटा सा एरिया बनाया पाकिस्तान का, पाकिस्तान। इज इट क्लियर? सो दिस रिवर इंडस, इट्स ओरिजिन इज फ्रॉम द तिब्बत, दैट इज इन चाइना, एंड इंडिया में ये जम्मू कश्मीर से होते हुए ये कहां चली जा रही है? पाकिस्तान में चली जा रही है। इज इट क्लियर? क्योंकि द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान इज नोन एज हियर इंडस रिवर। पाकिस्तान की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो इंडस है, इसलिए यहाँ पे मैंने सतलुज बेसिन बोला। ठीक है, क्योंकि सतलुज जो है, सतलुज इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। सतलुज क्या है? इंडस की क्या है? ट्रिब्यूटरी है। तो फ्रॉम एंट्रिंग जम्मू एंड कश्मीर, देन इट इज गोइंग फ्रॉम द, कहां चली जा रही है? पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान में एक शहर आएगा कराची, काफी फेमस है, सुना होगा अगर आप न्यूज देखते होगे। ठीक है, कराची शहर के पास फिर ये जो आपकी रिवर है किसमें जाके मिक्स इंटर कर जाती है? अरेबियन सी में। आगे बात समझ में? आई थिंक यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड। इज एनी कंफ्यूजन? नो? ओके, वेरी गुड। देखो एक बार फिर से सुन लो, जो इंडस रिवर है इसकी ओरिजिन जो है, द ओरिजिन ऑफ द इंडस रिवर जो है आपकी कैलाश रेंज से है। ओके, एंड तिब्बत में चाइना से आ रही है, ये इंडिया में इंटर कर रही है जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर से आफ्टर जम्मू कश्मीर इट फ्लोज इनटू द पाकिस्तान। वेयर इट इज गोइंग? इट इज गोइंग टू Pakistan, and there is a city in Pakistan very famous that is known as Karachi,
और कराची के बाद फिर ये किसमें मिक्सअप हो जा रही है, अरेबियन सी में, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाते समय बताया था कि इन द लास्ट द रिवर्स इंटर इनटू द सी, लास्ट में सारी रिवर्स किसमें इंटर कर जाती हैं, सी में इंटर कर जाती हैं। इज इट क्लियर नाउ? तो डेट इज द रीजन मैंने सतलुज बेसिन बोला, क्योंकि सतलुज जो है ये इसी की ट्रिब्यूटरी है। लेकिन अभी तुम लोग सोच रहे होगे कि सर ने बोला जम्मू कश्मीर से आई उसके बाद पाकिस्तान में चली गई, तो ये कहाँ इससे मिली, वो मैं तुम्हें अभी समझाऊंगा। चैप्टर आगे चलेंगे, देन आई विल एक्सप्लेन यू दिस थिंग हाउ इट इज ए ट्रिब्यूटरी। इंदस की ट्रिब्यूटरी कैसे है, सहायक नदी कैसे है, इसको एक्सप्लेन तब करेंगे जब हम लोग सतलुज वेसिन्स के बारे में थोड़ा डिटेल स्टडी कर लेंगे। ठीक है, तो बेटर ये है कि यू प्लीज ओपन योर मैप, अपना मैप ओपन करो। ठीक है, व्हेन यू विल ओपन, मैंने तो स्मॉल सा ये बना रखा है, लेकिन व्हेन यू ओपन द रिवर्स मैप्स ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, जब आप मैप ओपन करोगे तो यू विल सी दिस पोर्शन जम्मू कश्मीर हिमाचल, मैंने आगे का नहीं बनाया है। ठीक है, क्योंकि आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सतलुज बेसिन, और ऑलरेडी मैंने तुम लोग को बताया था कि जो इंदस रिवर से जो स्टेट्स कवर होती हैं दैट इज पंजाब एंड हरियाणा। तो पंजाब हरियाणा की बात एक्चुअली हमने की है, इसलिए आगे की ओर हमें नहीं जाना है। इट मीन्स वी आर नॉट टुडे गोइंग टू स्टडी अबाउट द गंगा बेसिन्स और ब्रह्मपुत्र बेसिन। टुडे वी विल do detailed study of all the rivers and tributaries which are found in Satluj basin, which are found in a Satluj basin. That is the reason मैंने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा मैप में दिखाया, और थोड़ा सा साइड से ये आपको पाकिस्तान का दिखाया। पाकिस्तान इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये जो आपकी रिवर आ रही है, रिवर इंदस विच इज कमिंग फ्रॉम द तिब्बत, दैट इज अ पार्ट ऑफ ए चाइना एंड इंटर फ्रॉम जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर से ये कहाँ चली जा रही है, पाकिस्तान में चली जा रही है। एंड फ्रॉम पाकिस्तान जहाँ कराची का शहर आता है, फ्रॉम हियर यहाँ पे इससे थोड़ा आगे जाके फिर ये वाटर जो होता है इस रिवर का, सी वाटर, इट इंटर्स इनटू द अरेबियन सी, ये किस में चला गया, अरेबियन सी में चला गया। इज इट क्लियर? एंड अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट आई टोल्ड यू, इफ यू नोट डाउन इन योर रफ कॉपी, नोट कर लिया करो, दैट इज वेरी गुड। पाकिस्तान की जो लॉन्गेस्ट रिवर है या मेन रिवर आप कह सकते हो, दैट इज द इंदस सी है, जिसको सिंधु नदी भी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, सिंधु नदी बोलते हैं। सो पाकिस्तान की जो लॉन्गेस्ट और इंपॉर्टेंट जो मेन रिवर है उसे आप इंदस रिवर भी बोल सकते हो। ठीक है, नाउ कम टू द टॉपिक द सतलुज बेसिन। ओके, ऑल ऑफ यू सी, अगर आप बुक के लाइन से चलोगे देन आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड मोर क्लियरली, आपको ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। ओके, नाउ सी पेज नंबर 83, पेज नंबर 83, इफ यू वांट टू अंडरलाइन इट, अंडरलाइन इन द बुक आल्सो, क्योंकि मैं इसी ढंग से क्लास में पढ़ाता था, इंपॉर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन करा देता था। ठीक है, नाउ द टीचिंग इज फ्रॉम होम, सो अगर आप एपिसोड देख रहे होगे देन इट्स इज वेरी गुड फॉर यू, एंड इफ यू आर नॉट वाचिंग द वीडियो देन यू विल मिस मेनी इंपॉर्टेंट थिंग्स। So Satluj is the tributary of the Indus river, of the Indus river. So I already in the starting I explained you northern plains are made by or created by three main rivers, that is Indus, Ganga and Brahmaputra. But here I am saying Satluj basin. So now there I don't think there is any confusion, because सतलुज का नाम हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि सतलुज भी लास्ट में किसमें मिक्सअप हो जाएगी, इंदस में, ये उसी की ही ट्रिब्यूटरीज है। दैट इज द रीजन मैंने सतलुज बेसिन बोला। इज इट क्लियर? आई होप इज इट वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, नाउ सी स्टूडेंट, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। Small short note I want to give you for your good understanding. If you want to note, you can write. Okay, now see, you want to note down, then you can write. Indus river. Okay,
enters in India. Jammu and Kashmir. Okay, then flows in Pakistan. So student, for your better understanding, देखो तुम्हें नोट करने में पता नहीं तुम्हें लगे कि नोट कौन करे, ऐसे ही सुन ले लेकिन इफ यू कीप द थिंग्स इन योर माइंड or always, then this is a very best technique. What the notes I am giving you on the board, you note down. See, इंडस रिवर्स की origin मैंने बता दी, origin कैलाश रेंज है जो तिब्बत में है, चाइना, ठीक है. सो यहां से ये रिवर जो है आपका origin हुई है, ठीक है. और नाउ फ्रॉम वेयर, अब क्वेश्चन अराइज होता है फ्रॉम वेयर इट इंटर्स इंडिया. सो आंसर इज इंटर्स इन इंडिया जम्मू एंड कश्मीर, जो ऑलरेडी मैंने अभी बताया आपको. देखो ओरल में आप सुने हो, 2-3 बार वीडियो देखोगे, देन इट इज वेरी गुड फॉर यू. बट इफ यू मेक ए नोट, अगर आप कहीं इस चीज को नोट कर लोगे तो वो आपके ब्रेन में हरदम मेमोराइज में हो जाएगी कि सर ने ये बताया था, ठीक है. सो व्हाट इज द ओरिजिन, कहां से ये नदी चली है, कैलाश रेंज से चली है, ये तिब्बत में, चाइना, ठीक है, वहां से ये चल रही है. और फ्रॉम वेयर इट इंटर, इंडिया में कहा ये इसने इंटर किया है, इंटर्स इन इंडिया जम्मू एंड कश्मीर. कहां इंटर कर रही है इंडिया में, जम्मू एंड कश्मीर में. एंड देन फ्लोज इन पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर से होती हुए ये फिर कहां फ्लो करने लगती है, पाकिस्तान में. ये चीज मैंने आप लोग को बताई थी कि इंडस रिवर फ्रॉम तिब्बत चाइना से आ रही है, जम्मू कश्मीर में आते, इंडिया में इंटर कहां इसने किया, जम्मू एंड कश्मीर में. और जम्मू कश्मीर में फ्लो करने के बाद फ्रॉम हियर इट इंटर्स द पाकिस्तान, इट फ्लोज इनटू द पाकिस्तान. दिस इज फॉर द इंडस रिवर. ओरिजिन कैलाश रेंज तिब्बत, दैट इज इन चाइना, इंटर्स इन इंडिया जम्मू एंड कश्मीर एंड देन फ्लोज इन पाकिस्तान. और फिर लास्ट का मैंने ऑलरेडी बता दिया कि पाकिस्तान में जहां कराची शहर है उसके आगे ये किसमें, इसका वाटर किसमें मिक्सअप हो जाएगा, दैट इज इन द अरेबियन सी, दैट इज इन द अरेबियन सी. आई होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ गया होगा. इज इट क्लियर. अब थोड़ा सा मैप रब कर देते हैं, कुछ चीजें लिख के पढ़ेंगे तो वो ज्यादा बेटर अंडरस्टैंड, फिर तुम लोग कभी नहीं भूलोगे. सीनियर क्लासेस में भी जाओगे तो इंडस रिवर ओरिजिन कहाँ कहाँ से कहाँ जा रही है, सारी थिंग्स तुम्हारे दिमाग में रहेंगी. नाउ सी इन द बुक, ठीक है. नाउ सी द बुक. सतलुज इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, दैट इज वेरी क्लियर, सबको हो गया. नाउ सी आफ्टर दैट इन द बुक इट इज रिटन व्यास, चिनाब, रवि एंड झेलम. Okay. See, after that in the book it is written सतलुज इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ ए इंडस, ये सबको क्लियर हो गया. उसके बाद है द ट्रिब्यूटरीज आर व्यास, चिनाब, रवि एंड झेलम. नाउ यहाँ पे आपको समझना है, ठीक है. ट्रिब्यूटरीज मतलब स्मॉल रिवर विच गेट इंटर्स इनटू द और हुज वाटर फॉल्स इनटू द बिग रिवर, छोटी नदियां जिसका वाटर किसमें फॉल हो जाता है, बिग रिवर्स में हो जाता है. इज इट क्लियर. So student, Satluj is the tributary of the Indus River. The tributaries are Vyas, Chenab, Ravi and Jhelum. अब वन बाय वन आप पहले इन तीनों को समझ लो, फिर आपको आएगा समझ में, ठीक है. अब ये बोल रहा है these are also the tributaries, small rivers हैं which are falling in the big rivers. So one by one अंडरस्टैंड अबाउट ऑल द रिवर्स, फ्रॉम वेयर दे आर ऑरिजिन, कहां से ऑरिजिन हो रही है, फ्रॉम विच स्टेट दे आर मूविंग,
क्योंकि मैंने तुम्हें बोला था ना ये सारी रिवर्स में लास्ट में सब कहाँ जा रही हैं, इंदस रिवर में जा रही है। किस में जा रही है सब लास्ट में, इंदस रिवर में जा रही है। ठीक है, अभी आपने देखा होगा कि सतलुज तो इधर है, ठीक है, और इंदस जम्मू कश्मीर से आई, फिर इट फ्लो इनटू द पाकिस्तान एंड देन फ्रॉम द कराची वाले एरिया से वो अरेबियन सी में मिक्सअप हो गई। नाउ दिस इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, नोट डाउन। लेट्स स्टार्ट विद दिस चिनाब रिवर, बेटा what I am writing on the board now, atlas where you study in the same manner, you mark it, then there is a line, all the lines are given in which manner the rivers are flowing from which state, and in the last they are mixing with which river. Is it clear? So now these all are the tributary, one by one I explained you all this about Vyas, Chenab river, Ravi and Jhelum. All the four rivers I explained you one by one, then you are able to understand in a simple manner. Okay, these rivers origin from Himachal, Himachal Pradesh. Then it falls in Indus river. Okay, see, in a very simple language. अब देखो, now we are starting from Chenab river. So try to understand student, Chenab river origin from Himachal Pradesh. ओके, ये रिवर कहां से निकली है बेटा, ये रिवर हिमाचल प्रदेश से निकली है। कहां से निकली है, हिमाचल प्रदेश से। एंड नाउ फ्रॉम द हिमाचल प्रदेश देन इट फ्लोज इन जम्मू कश्मीर। हिमाचल प्रदेश से अब ये रिवर कहां फ्लो की, जम्मू कश्मीर में। द ओरिजिन ऑफ चेनाब रिवर इज, origin of Chenab river is Himachal Pradesh, and then it flows in Jammu and Kashmir, and from Jammu and Kashmir then it enter Pakistan. ठीक है, अब ये कहां इंटर कर गई, पाकिस्तान में। देन इट फॉल्स इन इंदस रिवर। और पाकिस्तान में अभी इससे प्रीवियस वाला जब मैंने आप लोग को इंदस रिवर का बताया था, देन आई टोल्ड यू दैट उसकी ओरिजिन कहां से हुई थी, तिब्बत से, चाइना से। ठीक है, इंडिया में वो कहां से एंटर की थी, फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, एंड आफ्टर फ्लोइंग इन जम्मू एंड कश्मीर इट मूव्स टू, वो कहां चली गई थी, इट एंटर्स इनटू द पाकिस्तान में चली गई थी। ठीक है, अब देखो, क्योंकि ये सारी ट्रिब्यूटरीज मिक्स होंगी, लास्ट में किस में जाएंगी, इंदस में ही जानी है। इसीलिए स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला था, नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म विद 3 रिवर्स, दैट इज इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, क्योंकि ऑल दीज आर ट्रिब्यूटरीज, और लास्ट में दे ऑल आर मिक्सिंग विद द बिग रिवर दैट इज इंदस। तो अब देखो, चेनाब रिवर इट्स ऑरिजिन कहां से ये निकली, ऑरिजिन फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। नाउ आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस, देन इट फ्लोज इन जम्मू कश्मीर। हिमाचल से ये रिवर कहां पहुंच गई, जम्मू कश्मीर। ठीक है, एंड नाउ फ्रॉम जम्मू कश्मीर
इट इंटर्स इनटू पाकिस्तान, क्योंकि इससे पहले जो इंडस रिवर मैंने आपको बताई थी वो भी जम्मू कश्मीर के बाद पाकिस्तान में इंटर की थी. इज इट क्लियर? दिस origin from Himachal Pradesh, then it flows in Jammu and Kashmir, and then it enter Pakistan, and then after that what happened, then it falls in the Indus river. अब जो पाकिस्तान में पहले से इंडस रिवर गई थी, now when this river enter Chenab river enter into the Pakistan, after that this river water falls into the Indus river. Is it clear? Is it clear? See, Chenab river, its origin is Himachal Pradesh, then it flows in Jammu and Kashmir, then it enter Pakistan. और पाकिस्तान में आप लोग ने पहले ही देखा था कि पाकिस्तान में इंडस रिवर गई है. So after that when this river Chenab river when enter into Pakistan, then its water falls into the Indus river. अब ये किस में मिक्सअप हो गई? इंडस रिवर में. इज इट क्लियर? ओके स्टूडेंट, इतना आप पढ़ लो. नेक्स्ट वीडियो में देन आई एक्सप्लेन यू अबाउट दीज रिवर्स. ओके, थैंक यू स्टूडेंट.